خدا کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں. ہم جیسے کہ صبح بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بشپوں کی تاکید نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی ہیکل میں جہاں یہ کام ہوا. میں بتاؤں، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. آج صبح پتہ نہیں کسی نے مجھے کہا کہ انٹرویو دے. میں نے کہا میں کیا دوں انٹرویو؟ میرے نیچے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. میں یہاں کا خادم ہوں، میرے نیچے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. کس حالت میں کیا آپ کو کہوں؟ پھر بھی میں نے کہا کہ دنیا سن لے کہ کیا ہوا. اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے لعنت نہیں چاہتے، ہم ان کے لیے لعنتیں چاہتے ہیں. خدا کا یہ آلٹر کھلا ہوا ہے. دعا جو کرنا چاہتا ہے دعا بھی کرے، جو آنا چاہتا ہے تسلی کی باتیں کرنا چاہتا ہے وہ یہ بھی کرے. لیکن اس وقت ہم یہ صرف ایک بات یاد رکھیں، ہم نے کسی کلیسیا کو آگے نہیں کرنا، کلیسیا کو آگے نہیں کرنا. ہم سب کلیسیا کا حصہ ہیں. میں کلیسیا ہوں، ہم کلیسیا ہیں، ہم کلیسیا ہیں. تو جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ ضرور آئے، اپنے جذبات کا اظہار کرے اور تسلی دے. جو بھی آنا چاہتا ہے پلیز آپ آئیں. جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ خدا کے لوگ ہیں سارے. رائٹ آپ آئے پنجاب سے آپ بھی بیٹھ جائیں، بلکہ ایسے ایسے بیٹھ جائیں، درمیان میں سیٹ چھوڑ دیں. آپ اس سائڈ اس وقت میں اس چرچ کے اندر موجود ہوں جہاں گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا. 80 سے زائد افراد مارے گئے، 120 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے. اظہار تعزیت اور اظہار یکجہتی بھی یہاں پر ہمارے مسیحی برادریوں کے ساتھ اور مسیحی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کے ساتھ جاری ہے. یہاں مختلف وفود بھی آ رہے ہیں ان سے اظہار تعزیت کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب پرویز رفیق صاحب ہیں جو سابق صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے. یوسف اختر صاحب ہیں جو جرمنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. پرویز رفیق صاحب یقینی طور پر یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد جو آپ کی خطوات ہے حکومت سے، صوبائی حکومت سے اور مرکزی حکومت سے، وہ کیا ہے، کس طرح کے انتظامات ہونے چاہیے. یہ یقینی طور پر ایک اتفاق کو، ایک اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو مناظر ہم نے آج باہر دیکھے ہیں اس سے کہیں بھی ایسا نہ لگا کہ اتفاق و اتحاد میں سب لوگ ملے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو صوبائی حکومت جو ہے وہ تحفظ اقلیتوں کے جان و مال کا املاک کا جو کانسٹیٹیوشن میں بھی گارنٹی ہے اس کو شیور کریں، اور اس سانحے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. وی لو پیس، وی وانٹ پیس اینڈ وی آر اسٹرگلنگ فار پیس. اور پاکستان کو نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے. ہم امن کے خواہاں ہیں. گیو چانس ٹو پیس، یہ ہمارا بھی موقف ہے، وی آر دا فالوور آف جیسس کرائسٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیررسٹ سے امن مذاکرات نہیں کر سکتے. آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں ان سے جو امن لور ہو، جو امن پروموٹر ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جانے اور ٹائم ضائع کیے بغیر اب ایکشن لینا چاہیے
पूरा रियासती ताकत के साथ उन तमाम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क के अमन को तबाह कर रहे हैं और मासूम और बेगुनाह शहरियों को और वतन अजीज़ में उन्होंने दहशत गर्दी फैला रखी है। ठीक। हम ये समझते हैं कि ये वक्त है कि APC के फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए और ऑल पाकिस्तान पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है एक दफ़ा फिर उसका इनेकाद किया जाए और देखा जाए ये मैसेज है चर्च में, इस तरह का सानहा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो कितने अमन के ख़्वाह हैं। ठीक है। फादर जॉन विलियम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल कैथोलिक में इंटरफेथ हार्मनी के लिए, यानी मजहबी हमाहंगी के लिए आपने भी बड़ा काम किया। कहाँ कुछ कमज़ोरियाँ हैं फादर कि ये सब कुछ करें? मैं ये सोचता हूँ कि आहंगी में बहुत हद तक हमें कामयाबी हुई है, लेकिन हुकूमत से मेरी पुरजोर मुतालबा है कि हुकूमत मुखलिस हो। ये कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहा या कोई बात नहीं कर रहा, जो पार्टी भी हुकूमत में वो मुखलसी से मुल्क और कौम की अगर तामीर चाहते हैं तो फिर उन्हें ऐसी क़ुव्वतों का पूरी क़ुव्वत के साथ ताकत से मुकाबला करना होगा। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, श्रीलंका की मिसाल। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि तमिल टाइगर्स पे वो फतह पा लेंगे या उन्हें कायल कर लेंगे। अगर वो कर सकते हैं, उनकी फ़ौज तो हमारी फ़ौज की ट्रेन है, उनके पायलट्स हमारे मुल्क ने ट्रेन की, उनकी फ़ौज हमारे मुल्क ने ट्रेन की है। हमारी फ़ौज में या हमारी क़ुव्वतों में कौन सी कमी है कि हुकूमत ऐसी ताकतों से डरती है? अब इनमें भी इंतज़ाम तंजीमों में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं। अब हुकूमत कौन से ग्रुप के साथ वो डायलॉग करेगी कि कौन सी हुकूमत के साथ, के ग्रुप के साथ? तो मेरी ये पुरजोर मुतालबा है, मेरी डिमांड है कि हुकूमत मुखलस हो। अगर श्रीलंका फतह पा सकता है, काबू पा सकता है हालात पे, तो हमारी हुकूमत में क्या कमी है? ठीक है। हुकूमत जवाब दे कि उनके पास कौन से मसाइल की कमी है। ठीक है। यूसुफ साहब, जैसे कि पूरी दुनिया से इस वाक़े की मज़म्मतें आ रही हैं, अच्छा पैगाम तो नहीं है, लेकिन ये जो आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुसलमान भाई बहनें बुज़ुर्ग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब ने ताज़ियत भी की है और ये सिलसिला जारी है। बेशक पाकिस्तान के साथ लोग आ रहे हैं, इसने इसी बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये पैगाम दिया है कि कुछ भी हो जाए, यकीनन अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, लेकिन हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और हमारा जो इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ है और उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसने ये साबित किया है, बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये पैगाम दिया है। आप इसे इत्तेफ़ाक़ करते हैं? इससे देखा भी है इधर के वो आपस में बनती है और ये बहुत एक अच्छी मोहब्बत है। मगर मैंने जब रात को देखा तो वो मैंने मोहब्बत नहीं देखी, जैसे कि वो बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को रात को चोरी में दफना रहे थे। मैंने देखा और मैंने मेरे आंसू ये इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारे लोग वो कहाँ थे? सुबह तक कोई भी आज अभी तक नहीं करा और ना ही किसी। और हमारे लोगों की ये मैं कहता हूँ कि ये गफलत है या कमज़ोरी है कि जिस वजह से इन्होंने उनको रात को जो भी हो चुका था वो ठीक है, मगर ये कुछ उनको बताते तो सही कि हम भी हैं, हम भी यूरोप में रह रहे हैं। मैं अपने पहले यूरोप की लोगों की तरफ से सब जो ये वाक़या हुआ है इसका और मैं ये अपने यूरोप में भी जाके मैं ये पूरा इसके साथ काम करूँगा और इनको जो भी हमारी ज़रूरत हो हम इनके साथ करें। ठीक है जी जी। मैं ये भी कौम को बताना चाहता हूँ और आखिरी हमारे जो है किसी भी पार्टी का तल्लुक़ हो सब जानते हैं, इसी ही कौम बड़ी पुरअमन कौम है। पाकिस्तान के क़याम में, पाकिस्तान की तामीर में, इसके इस्तेहकाम में, इसकी तरक्की में हमारा खून शामिल है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की तामीर जो है वो हम जारी रखेंगे, किसी भी कीमत पर अपनी जान की कुर्बानी देकर भी मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आखिरी बात मैं बैनुल-अक़वामी बरादरी से करना चाहता हूँ कि अगर वो सही मानों में दुनिया में अमन चाहते हैं
इंसाफ का रास्ता इख्तियार करें, छोटी कौम का इस्तेसाल न करें, अपने मकासद के लिए गरीब लोगों को इस्तेमाल न करें। मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि अगर वो अमन का क़याम दुनिया में चाहते हैं और अमन बहाल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें जो है वो उसमें मुखलस हो जाएँ और अमन कायम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन विलियम साहब, यूसुफ अख्तर साहब और परवेज साहब। लेकिन जो फादर जॉन विलियम ने जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं चाहूँगा कि इसी पे प्रोग्राम खत्म किया जाए, क्योंकि इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मसीही बरादरी एक पुरअमन कौम है, इसने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है। बावजूद इसके कि आज गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हुआ, कई लोग उनके चले गए इस दुनिया से, कई लोग अब भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की खिदमत का जो जज्बा है उसमें मामूली फ़र्क भी नहीं आया। हम आफरीन पेश करते हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से मसीही बिरादरी को और फादर जॉन विलियम के इन अल्फाज को कि आज वो टूटे हुए हैं, वो गमज़दा हैं, वो ज़ख्म, उनके जिस्म पे ज़ख्म हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि वो पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं तो अदल व इंसाफ पर मबनी माशरे कायम करें, अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम करें। ये ना करें कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, किसी को किस दर्जे पर रखा हुआ है, किसी को किस दर्जे पर रखा हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक को वो किसी और दर्जे पे ट्रीट करते हैं, पाकिस्तान को वो किसी और दर्जे पे, किसी और सतह पे रखते हैं। लिहाजा अदल व इंसाफ बहुत ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना करें, यानी इस्तेहसाल ना करें, गरीब ममालिक का इस्तेहसाल ना करें। जब वो बराबरी की बुनियाद पर पॉलिसियाँ बनाएंगे तो मेरे ख़्याल में तमाम दुनिया में, न सिर्फ एक मुल्क में बल्कि न सिर्फ एक खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। जावेद इकबाल को पेशावर के इस गुवाहाटी चर्च से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।